Good morning. Today, the topic of my lecture is participant observation. By now, we have discussed a great deal about observation, and we have understood that observation is a scientific method which ensures objectivity in a research work, which ensures scientific spirit in a study, and participant had been participant observation had been in use for a very long time, and day by day its significance, its popularity is increasing among the social scientists. Now let's know something about uh, observation and participant observation once again. Observations enable the researcher to describe existing situations using the five senses, providing a written photograph of the situation under study. अभी तक हम अवलोकन के बारे में बहुत सी बातें जान चुके हैं और आज के मेरे व्याख्यान का विषय है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जिसे हिंदी में सहभागी अवलोकन कहते हैं। ऑब्जर्वेशन का तात्पर्य होता है किसी चीज को अपनी आंखों से देखना और अपनी इंद्रियों से समझना। जब हम ऑब्जर्वेशन शब्द का प्रयोग सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में करते हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि अनुसंधानकर्ता के द्वारा अध्ययन क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर घटना को अपनी आंखों से देखना और अपनी विभिन्न इंद्रियों से उस घटना के विभिन्न पहलुओं को समझना। Participant observation for many years had been a hallmark of both anthropological and sociological studies. अगर हम सामाजिक अनुसंधान के इतिहास पर प्रकाश डालें या उस पर हम दृष्टिपात करें तो हम ये पाते हैं कि अवलोकन का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार स्वरूप जो समाजशास्त्रियों में प्रचलित रहा है और जो मानव शास्त्रियों में प्रचलित रहा है वह है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जिसके अंतर्गत एक अनुसंधानकर्ता घटना स्थल पर अर्थात अध्ययन क्षेत्र में स्वयं जाता है, सूचनादाताओं के साथ अंत्यक्रिया करता है, उनके साथ रहता है, उनकी ही संस्कृति को जीता है और इस प्रकार वह समूह से इस प्रकार जुड़ जाता है कि समूह के सदस्य उसे भी उसी समूह का सदस्य मान लेते हैं और फिर वो अनौपचारिक रूप से उसके साथ वो घटना से जुड़ी हुई सारी बातें उसके साथ शेयर करते हैं। Qualitative methods of data collection such as interviewing, observation, and document analysis have been included under the umbrella term of ethnographic methods. Participant observation is the process which enables the researchers to learn about the activities of the people under study. In the natural setting, through observing and participating in those activities. सहभागी अवलोकन अर्थात पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक प्रक्रिया है जो कि अनुसंधानकर्ता को सक्षम बनाती है कि वह जिन लोगों का अध्ययन कर रहा है उन लोगों के क्रियाकलापों के बारे में जाने, स्वाभाविक रूप से उनके क्रियाकलापों को देख करके और साथ ही उनके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों में स्वयं भी भागीदारी करके। Participant observation provides the context for development of sampling guidelines and interview guides. It is another feature of participant observation. Sampling is determined as a result of participant observation. Participant observation requires a certain amount of deception and impression management until and unless the observer is trained in these two things.
in the art of deceiving others, in the art of impressing others, he cannot be successful in making participant observation, because participating in a group which is entirely unknown to the observer, it's a very difficult task. It's not an easy task. It is not the child's play. So, in order to behave in a way as if he were a member of the same group, the participant observer needs to have these qualities. Participant observation is characterized by such actions as having an open, non judgmental attitude, being interested in learning more about others, being aware of the propensity for feeling culture shock and for making mistakes, the majority of which can be overcome, being a careful observer and a good listener, and being open to the unexpected in what is learned. Now, I am going to share with you a few popular definitions of participant observation. As we know, there are several definitions of observation, several definitions of participant observation, and each of them has something specific to reveal about participant observation, its features, its characteristics. So, here, through this lecture, I am going to share with you a few definitions of observation and participant observation. जैसे हम जानते हैं कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की अनेकों परिभाषाएं हैं, जिनको मानवशास्त्रियों ने, समाजशास्त्रियों ने, अन्य विद्वानों ने दिया है। प्रत्येक परिभाषा अपने आप में महत्वपूर्ण है और प्रत्येक परिभाषा ऑब्जर्वेशन के बारे में, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में कुछ ना कुछ अवश्य बताती है। इस व्याख्यान के अंतर्गत मैंने कुछ परिभाषाओं को सम्मिलित किया है, जो निश्चित रूप से पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करेंगे। द फर्स्ट डेफिनेशन दैट आई एम गोइंग टू शेयर इज बाय मार्शल एंड रॉसमैन। सबसे पहली परिभाषा जो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ वो मार्शल और रॉसमैन की है, और दे से दैट ऑब्जर्वेशन इज द सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, behaviors, and artifacts in the social setting chosen for the study. मार्शल और रॉसमैन का मानना है कि ऑब्जर्वेशन इवेंट्स का, बिहेवियर्स का, आर्टिफैक्ट्स का एक व्यवस्थित वर्णन है। उन इवेंट्स, उन बिहेवियर्स, उन आर्टिफैक्ट्स का जो सोशल सेटिंग में उपलब्ध हैं और जिनको स्टडी के लिए चुना गया है। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज बाय डी मंक एंड सोबो। They give very important views on participant observation. According to them, participant observation is the primary method used by anthropologists doing fieldwork, which involves active looking, improving memory, informal interviewing, writing detailed field notes, and perhaps most importantly, patience. ये परिभाषा डीमंक और सोबो की है, और आपने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि पहली बात तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक प्राइमरी मेथड है जिसको प्रायः एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स के द्वारा यूज किया जाता है उस समय जब वो फील्ड वर्क करते हैं। इसके अंतर्गत जो चीज़ सम्मिलित है वो है एक तो एक्टिव लुकिंग।
कि अनुसंधानकर्ता बहुत सक्रिय रह करके घटना को देखता है, चीजों को देखता है। इम्प्रूविंग मेमोरी, और इस प्रकार से घटना के बारे में जो उसकी याददाश्त है उसको बढ़ाता है, अपनी याददाश्त को बढ़ा कर रखता है जिससे कि वो आगे चल के लिख सके। इनफॉर्मल इंटरव्यूइंग, लोगों के साथ जुड़ना और उनके साथ अनौपचारिक रूप से साक्षात्कार करना, बातें करना, वो सम्मिलित है इसमें। राइटिंग डिटेल्ड फील्ड नोट्स, और जो फील्ड नोट्स हैं विस्तार में उनको लिखना। और इन सब में भी सबसे महत्वपूर्ण है पेशेंस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अ, उस पर संदेह किया जाता है, या जिन उद्देश्यों के साथ वो अवलोकन कर रहा है लगता है कि वो उद्देश्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। नाउ, नेक्स्ट डेफिनेशन of participant observation that I am sharing with you is by Shensul and Lecompte. They say that participant observation is the process of learning through exposure to or involvement in the day-to-day or routine activities of participants in the researcher setting. आप भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन लर्निंग की प्रोसेस है, सीखने की प्रक्रिया है। सीखने से मतलब यहाँ घटना के बारे में सीखने, घटना के बारे में ज्ञान बढ़ाने की प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया, ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया जाता है एक्सपोजर के द्वारा। इसमें अनुसंधानकर्ता को स्वयं अपने आप को एक्सपोज करना पड़ता है। इन्वॉल्वमेंट के द्वारा उसे स्वयं शामिल होना पड़ता है दिन प्रतिदिन की या जो रूटीन एक्टिविटीज हैं पार्टिसिपेंट्स की, उनकी एक्टिविटीज में। और इस प्रकार से घटना का अध्ययन करना पड़ता है, घटना का को जानना पड़ता है। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज बाय बर्नार्ड। अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग रेपो विद इन अ कम्युनिटी। आपका मानना है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता किसी समुदाय के साथ रेपो, संबंध स्थापित करता है, संबंध विकसित करता है। एंड लर्निंग टू एक्ट इन सच अ वे, और सीखता है एक्ट करने के लिए इस तरह से, एज टू ब्लेंड इनटू द कम्युनिटी। इस तरह से वो एक्ट करना चाहता है कि जिससे कि वो इस तरह से कि वो कम्युनिटी उस समुदाय के साथ अपने आप को पूरी तरह से घुला मिला ले, सो दैट इट्स मेंबर्स विल एक्ट नेचुरली, जिससे कि उस समूह के जो सदस्य हैं वो सदस्य उसको अपने ही समूह का सदस्य समझने लगें और उसके सामने किसी भी प्रकार का कोई संकोच ना करें और उसके सामने अपने स्वाभाविक व्यवहार को वो प्रस्तुत करें। देन मूविंग वन सेल्फ फ्रॉम द सेटिंग और कम्युनिटी टू immerse oneself in the data to understand what is going on and be able to write about it। जैसे कि उस कम्युनिटी के बारे में वो समझ सके, तथ्य संकलित कर सके उस कम्युनिटी के बारे में कि उसमें क्या चल रहा है, और इतना ही नहीं कि अगर लिखने का मौका पड़े तो वो उस कम्युनिटी के बारे में वो लिख भी सके जिस घटना का अध्ययन कर रहा है, जिस घटना के संदर्भ में उस कम्युनिटी का, उस समुदाय का अवलोकन कर रहा है, उसका अध्ययन कर रहा है। तो उसे इस लायक भी हो जाना चाहिए कि वो उसको लिख भी सके। तो इस प्रकार से पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है जो मानव शास्त्रियों में, समाज शास्त्रियों में प्रचलित रहा है, अब भी है, आगे भी होता रहेगा। और इसके अंतर्गत जहाँ तक समाज शास्त्रियों का सवाल है, समाज वैज्ञानिकों का सवाल है, तो समाज शास्त्री अध्ययन क्षेत्र पर स्वयं उपस्थित रहते हैं और अनियंत्रित रह करके, घटना पर किसी प्रकार का नियंत्रण न करके, अनुसंधान की जो इकाइयां हैं जो जिनका अध्ययन किया है उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण न करके या स्वयं पर नियंत्रण न करके घटना का अवलोकन किया जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अनुसंधानकर्ता को समूह के सदस्यों के स्वाभाविक व्यवहार को समझने का अवसर मिल जाता है और इसके आधार पर जो घटना है उस घटना को भी समझने का, उसकी सही समीक्षा करने का और उसके बारे में निष्पक्ष और सही परिणाम निकालने का भी मौका मिल जाता है।
तो इस प्रकार से इन दिस वे वी कैन से दैट participant observation is a very important form of observation. It enables the researcher, study maker, social scientist to be free from all the controls over himself, over the units of information, to observe the natural behavior, natural behavior of the members of the group in consideration. And in this way, to study the environment, to study the problem which he's going to study in a proper way, in a systematic way. So, in short, we can say that participant observation is a very popular, very important type of observation. Thank you.